Hello students, beta now we are discussing about the numericals of chapter 4.1 type D. Type D deals with mutual induction, self induction ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਉਸੇ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਲਕਸ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LI, ਇੰਡਿਊਸ EMF L di/dt। ठीक है, L ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਊ ਨੋਡ N ਸਕੁਅਰ A/L। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ। ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਇਲ 'ਚ, EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੋਇਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੇਮ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ 'ਚ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। बट अगर करंट चेंज हो रहा है एक कोयल EMF इंड्यूस हो रही है दूसरी कोयल फिर म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन हैं, फार्मूले भी म्यूचुअल इंडक्शन के लगणगे। तो कोई कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं बेटा, सिंगल कोयल है, उसे का करंट चेंज हो रहा है, उसे EMF इंड्यूस हो रही है, सैल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक कोयल करंट चेंज होएगा, दूसरे EMF इंड्यूस होएगी। हाँ, सानू इन्हां दो कोयल्स का M भी पूछा जा सकता है, सानू इंडिविजुअल एक कोयल का L भी पूछा जा सकता है। तो M पूछा तो M वाला फार्मूला लगाना है, म्यू नोड N1 N2 A/L। L पूछा तो L वाला लगाना है। ठीक है, इस दे विच जे दोने कोयल्स डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन दियां ने तो याद है L लैनी हुंदी है लेंथ ऑफ लॉन्गर सोलेनोइड, लेंथ ऑफ लॉन्गर सोलेनोइड, एंड A लेना होंगे एरिया ऑफ इनर सोलेनोइड। थ्योरी च तुहानूं दस्सिया सीगा है ना बेटा। तो इस नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सौखे क्वेश्चन है, ईवन के सैल्फ इंडक्शन नालों भी सौखे हैं। जिहे जे क्वेश्चन सैल्फ इंडक्शन के सी उह जे क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन के। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप डी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दे विच है बेटा, अ कार स्पार्क कोयल develops an EMF induced 40,000 volt in the secondary coil। EMF is induced in the secondary coil, मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, EMF is induced in secondary coil, current is changing in primary coil, flux is linked with the secondary coil, current is primary coil, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ secondary coil ਦੀ EMF ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, when current in its primary changes from 4 ampere to 10 microsecond, 4 ampere to 0 in 10 microsecond। प्राइमरी कोयल का चेंज इन करंट दिता हुआ है, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट मतलब करंट चेंज हो रहा है, एवं लिख लो बेटा, करंट चेंज हो रहा है 4 एम्पीयर, 4 एम्पीयर टू 0 एम्पीयर, 4 एम्पीयर तो 0 एम्पीयर बन रहा है, किन्ने टाइम च बन रहा है 10 माइक्रोसैकेंड्स। 10 माइक्रो होंगे 10⁻⁻6, बन गया 10⁻⁻5 सेकेंड्स, इन चेंज हो रहा है। वट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M फाइंड आउट करना है, M। ठीक है, तुसी फार्मूला लगा लो E वाला, आ वाला कला मैगनीट्यूड की फॉर्म च लगा लो, ये फार्मूला एवं बन जाएगा M, या डायरैक्शन लगा लो नाल, कोई दिक्कत नहीं, डायरैक्शन लगा लो I2 माइनस I1/T। ठीक है, इतों E भी उधर चला गया, T भी उधर चला गया, I2 माइनस I1 भी नीचे चला गया, माइनस भी उधर चला गया, पूरा M फाइंड आउट हो जाएगा। समझ गए, समझ आ गई ना। ES मतलब E की वैल्यू पुट कर देंगे 40,000, टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब I2 माइनस I1 नीचे चले गए, अब माइनस उधर लिखता, M इज इक्वल टू दिस। I2 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0, I1 की वैल्यू 4, माइनस ना माइनस कट्टा जाएगा, वैल्यूज पुट करके M आ जाएगा थोड़ा। बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर
30th, over a solenoid of 50 centimeter length, over a solenoid of 50 centimeter length, solenoid की length 50 centimeter है, 50 centimeter and 2 centimeter radius having turns, ਉਹਦਾ radius ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा 2 centimeter and ਉਹਦੀਆਂ turns ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ L1 R1 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਈ, ਟਰਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 500। ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ ਵਾਊਂਡ ਅਨਦਰ ਵਾਇਰ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਇਰ ਹੋਰ ਵਾਊਂਡ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਵਾਊਂਡ ਕਰਤਾ, ਹੈਵਿੰਗ 50 ਟਰਨਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਨਸ 50 ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਵਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ। ਓਵਰ ਅ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆਫ ਦਿਸ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ, 500 ਟਰਨਸ, ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਵਾਊਂਡ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੀਆਂ 50 ਟਰਨਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਵਾਇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਤੋਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਇਨਰ ਹੈ, ਇਨਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਟੂ ਕੋਇਲਸ, ਐਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊ ਨੋਡ N1 N2, ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 4 ਪਾਈ 10⁻⁷। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ N1 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 500, N2 ਹੈਗਾ 50, ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਂਥ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਓ 0.05 ਮੀਟਰ। ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੌਂਗਰ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੈਣਾ, ਲੈਂਥ ਲੌਂਗਰ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਐਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਕਰੰਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੇਂਜਿਸ ਫਰੋਮ 0 to 5 ਐਂਪੀਅਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰੋਮ 0 ਐਂਪੀਅਰ ਟੂ 5 ਐਂਪੀਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ? 0.02 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਈ ਐਮ ਐਫ ਇੰਡਿਊਸਡ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਈ ਐਮ ਐਫ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈ ਐਮ ਐਫ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟਾ M di/dt। ਓਕੇ, ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਗਾ ਲਿਓ। M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, I2 - I1 ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਈ ਐਮ ਐਫ ਇੰਡਿਊਸਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦਿਸ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30th। Now we move to question number 31. Okay, an air cored solenoid, air cored solenoid है बेटा, air है उससे air। Okay, solenoid is of length, उसकी length दी हुई है 0.3 मीटर। area of cross section, area of cross section length दी हुई है, area of cross section दिता है अपन 1.2 10⁻³ मीटर स्क्वायर। Okay, has 2500 turns, number of turns 2500 turns है। around its central cross section a coil of 350, ਇਹਦੇ central cross section ਦੇ around ਇੱਕ coil ਹੋਰ wound ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ inner ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ solenoid ਹੈ inner ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ outer ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ number of turns ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਟਾ? 350 turns। the solenoid and the coil are electrically insulated, calculate the EMF induced। okay, इंड्यूस्ड EMF फाइंड आउट करनी है, कितनी होएगी? ओके, कर देने हैं। एंड देन इफ द सेकेंडरी कॉइल, इफ दिस चेंज अकर्स इन 0.2 सेकेंड्स, आल्सो फाइंड प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी। क्वेश्चन दूसरा 32 ਤੇ चला गया, वेट अ मिनट। 31 ਦੇ ਵਿੱਚ सोलेनोइड कैलकुलेट द EMF इंड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। इफ द इनिशियल करंट ऑफ 3 एम्पीयर इन सोलेनोइड रिवर्स्ड इन 0.25 सेकेंड्स। ओके, थोड़ी प्रॉब्लम है इस EMF इंड्यूस्ड, तो ये पहले तो फाइंड आउट करते हैं। चलो ये फाइंड आउट करने वास्ते आप लगा लें M
एम डी आई बाई डी टी। ओके, एम दा फार्मूला म्यू नॉट N1 N2 A by L, area of inner solenoid, length of longer solenoid, di I2 minus I1 dt time। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ EMF ਇੰਡਿਊਸਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਵੈਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਟ ਆਫ 3 एम्पीयर reverses its direction, दैट मीनस ਜਿਹੜਾ फाइनल करंट हो गया वो कितना होएगा -3 एम्पीयर। उन्हें अपनी डायरैक्शन उल्टा ली, किन्ने टाइम च उल्टा ली 0.25 सैकेंड्स। ये मीनिंग है बेटा क्वेश्चन का। हम सानू देखो म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स N1 पता ने, N2 पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, I2 पता है, I1 पता है, टाइम पता है, सारिया वैल्यूज़ पता ने, EMF फाइंड आउट हो जाएगी। कोई गल नहीं, जिहदी EMF माइनस च आती है कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, माइनस साइन इंडिकेट्स डायरैक्शन। जे माइनस च EMF आ जाती है तो तुसीं कह सकते हो माइनस साइन इंडिकेट्स डायरैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। बुक वाले ने क्वेश्चन शायद मैगनीट्यूड की फॉर्म सॉल्व किया हो, इत्थे माइनस ना लिता हो, तां करके उन्होंने आंसर प्लस च आ रहा हो। थोड़ा आंसर माइनस च आंदा, कोई दिक्कत नहीं हैगी, माइनस साइन इंडिकेट्स डायरैक्शन। आ चीज़ समझ आ गई। ये लास्ट लाइन है, वो लास्ट लाइन पढ़ो, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड in the coil if initial current of 3 ampere the initial current reverses in 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड्स च रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब अपना मैगनीट्यूड सेम रखेगा, डायरैक्शन उल्टा लेगा। तो जी डायरैक्शन उल्टा ली उसका असी माइनस लगा लिया, असी I2 की वैल्यू उत्थे माइनस च पुट करांगे, -3 एम्पीयर -6 है ना, वो माइनस अगे कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइड करके रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इजी क्वेश्चन है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 31। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। ओके, वेट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 32। ओके बेटा, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। एम फाइंड आउट करना है। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इन प्राइमरी कॉइल ओके changes the flux by 500 Weber per turn in secondary coil of 200 turns। secondary coil दियाँ turns दित्ती हुई ने, तो ਉਹਦਾ flux कितना secondary coil ਦਾ कितना flux change हो रहा है 500। this is current of primary coil, flux of 500 Webers per turn, 500 Webers per turn। ये एक टर्न का फ्लक्स है बेटा। ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 200 ਟਰਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ 500 ਵੈਬਰਸ ਪਰ ਟਰਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ 500 ਵੈਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ D5 ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਫਾइंड आउट कर लाँगे। एक टर्न का फ्लक्स है 500, टोटल टर्न्स है 200, मल्टीप्लाई करके 0 0 0 0 10 एन आ जाएगा फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल। फिर है ना वो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल इज इक्वल टू M इंटू करंट ऑफ प्राइमरी कोयल। इतों M फाइंड आउट हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोयल IP है ना, वैल्यूज पुट करके रिजल्ट। ओके, 32 क्वेश्चन ये एक पार्ट हो गया। आल्सो फाइंड द इंड्यूस्ड EMF, कहते इंड्यूस्ड EMF भी कड्डो across the ends if the secondary coil, if this change, also find the induced EMF across the ends of the secondary coil। ठीक है, secondary coil दे cross EMF करो। if this current, if this change occurs in 0.5 seconds, कहते अगर ये change 0.5 seconds हुई है तो जी चेंज हुई है, जोड़ा फ्लक्स चेंज होया ये 0.5 सेकेंड्स जो है EMF कड्डो। EMF का फार्मूला लगा लो फिर सिंपल आ वाला। EMF का फार्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लगा लो बेटा। सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होया ना,
फाइनल फ्लक्स इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, ये लगा लो। नंबर ऑफ टर्न्स छड़ दो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आप पहला काउंट कर लिया। ओके, ये फार्मूला लगा लो बेटा। फाई टू की वैल्यू इन्नी ले लो जिन्नी हैगी 10,000 है ना। 510 टाइम 0.5 सेकेंड्स सॉल्व करके इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी बेटा। ठीक है, रिजल्ट बन जाएगा। ओके, ओके बेटा, कम टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ बेटा 2 coils A and B, दो coils हैं, एक A एक B, spaced close to each other, sharing the same cylindrical axis, having 400 and 700 turns। ਇਹਦੀਆਂ 400 turns है बेटा, ਇਹਦੀਆਂ 700 turns है respectively। A current of 3 ampere in coil A, प्राइमरी coil करंट कितना दिता हुआ है 3 एम्पीयर, produces an average flux of 300 माइक्रो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर थ्रू ईच टर्न। यदि एक टर्न का फ्लक्स दिता है बेटा, एक टर्न का कितना दिता है 300, एवरेज फ्लक्स ऑफ 300 माइक्रो, एवरेज फ्लक्स ऑफ 300 माइक्रो टर्न्स ऑफ थ्रू ईच टर्न्स ऑफ ए। वेट अ मिनट बेटा, यदि स्टेटमेंट थोड़ा केयरफुली पढ़ो, दोबारा तो रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट। 2 coils हैं ए एंड बी, एक दूजे के नेड़े पईयां ने, शेयरिंग सेम सिलेंड्रिकल एक्सिस, हैविंग फस्ट दी टोटल टर्न्स हैगियां ने 400 एंड सैकेंड दी टर्न्स हैगियां ने 700। ठीक है, अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर इन coil ए, coil ए 3 एम्पीयर का करंट दिता है। ओके, 3 एम्पीयर करंट इन coil ए produces an average flux of 300 micro Tesla meter square, average flux through each turns of A, and flux of 90 micro Tesla meter square through each turn of B। okay, यदि एक टर्न का A coil दी एक टर्न का फ्लक्स दिता है बेटा 300 माइक्रो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, मतलब 300। थोड़ा ध्यान नाल बेटा, सौखा क्वेश्चन पर ध्यान नाल, टेस्ला मीटर स्क्वायर ये एक टर्न का फ्लक्स है। ओके, एंड एदा एक टर्न का फ्लक्स कितना दिता है बेटा, एक टर्न का फ्लक्स एदा सेकेंडरी का एक टर्न का फ्लक्स दिता है 90 माइक्रो आ दिता है। तो आप पहले इहदे टोटल फ्लक्स कड्डो, टोटल फ्लक्स coil A का टोटल फ्लक्स, coil B का टोटल फ्लक्स, ये फाइंड आउट करो। ओके, टोटल फ्लक्स coil A का एक टर्न के फ्लक्स नूं उहदियां नंबर ऑफ टर्न्स नाल मल्टीप्लाई करके एवें ਇਹਦਾ टोटल फ्लक्स बनेगा, एक टर्न के फ्लक्स नूं उहदियां नंबर ऑफ टर्न्स नाल मल्टीप्लाई करके। एक टर्न का फ्लक्स ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ है 300 इंटू 10⁻⁶, ਇਹਦੇ नंबर ऑफ टर्न्स ने 400 है ना। 0 0 0 0 कट्टी जाएगी, 10⁻² रहेगा 12 12 0.12 बन जाएगा बेटा। दिस इज़ 5 ओके इन्ना वेबर्स, एंड फिर ਇਹਦਾ फ्लक्स आ जाएगा d5/2 90 10⁻⁶ इंटू 700 0 0 0 3 0 रहेगी 9763 0.063। ये सैकेंड का फ्लक्स है। एक टर्न का फ्लक्स दिता है, लिखा है क्वेश्चन च इन्ना फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ ए, 300 माइक्रो फ्लक्स है ना थ्रू ईच टर्न ऑफ ए। एक टर्न coil A दी एक टर्न का फ्लक्स, coil A दी एक टर्न का फ्लक्स है, coil B दी एक टर्न का फ्लक्स है। एक टर्न का फ्लक्स दिता है सी, फार्मूला लगा के टोटल फ्लक्स कढ़ लिया दोनों टर्न्स का, दोनों की लोड़ पेगी अपन। ओके, कैलकुलेट पहला ए पार्ट की कैलकुलेट करना बेटा, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो दोनों का तो आप लिख देना फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी coil इज इक्वल टू M इंटू करंट ऑफ प्राइमरी coil। बोलो लिख दो ना। तो इत्थे फ्लक्स लेना बेटा सेकेंडरी coil का एंड करंट लेना प्राइमरी coil का।
तो इत्थों एम निकल आएगा फाई 2/I1। बहुत वधिया क्वेश्चन है ये भी। फ्लक्स लेना है सैकेंडरी कोयल का, करंट लेना है प्राइमरी कोयल का। करंट प्राइमरी कोयल का एंड फ्लक्स सैकेंडरी कोयल का एम वक्त। बी पार्ट सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए दी सैल्फ इंडक्टेंस करनी है। सैल्फ इंडक्टेंस वक्त बेटा जिसका फ्लक्स लैने होंगे हो उसे का करंट लेना होंगे। जे तुसी प्राइमरी का फ्लक्स लै रहे हो तो प्राइमरी का ही करंट तो सैल्फ इंडक्शन लगेगा। म्यूचुअल इंडक्शन लगता होंगे जो एक कोयल का करंट होवे दूसरी का फ्लक्स होवे। सैल्फ इंडक्शन लगता होंगे जो जिस कोयल का करंट है उसे का फ्लक्स होवे। तो बेटा इत्थे जो सेम टर्म सेम कोयल का फ्लक्स लवांगे सेम कोयल का करंट लवांगे तो एल आएगा। कि थोनों दोनों च फर्क पता चल गया? आ फार्मूलिया फर्क पता चल गया बेटा? जो फ्लक्स दूसरी कोयल का होवे करंट फस्ट कोयल का तो एम निकलता होंगे। जो जिस कोयल का फ्लक्स है उसे का करंट है तो एल निकलता होंगे। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट च उन्होंने कहा है वट EMF इज इंड्यूस्ड इन बी। EMF इन सैकेंडरी कोयल पूछा बेटा वैन करंट ए इनक्रीजिज एट द रेट ऑफ 0.5। ए दा करंट अगर इंक्रीज होवे एट द रेट ऑफ ए दा करंट है बेटा प्राइमरी कोयल का फस्ट का करंट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5 एम्पीयर पर सेकेंड। तो इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला -m di/dt। सैकेंडरी कोयल की EMF निकलती है जो प्राइमरी कोयल का करंट हो। तो एम असी फाइंड आउट कर चुके हैं, ऊपर इतों आ जाएगा एम, है ना। di/dt वैल्यू बेटा 0.5 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सैकेंडरी कोयल की EMF। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 33। लास्ट क्वेश्चन पर आने आप टाइप डी का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 34। Compute the mutual inductance for a given pair of coil if increase in current 2 ampere in this second causes induced EMF this 1 volt in the another coil। अपने आप करोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 34 अपने आप। सेम फार्मूला लगना है E इज इक्वल टू एम di/dt। ठीक है, अपने आप करोगे क्वेश्चन नंबर 34 ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। ओके, थैंक यू वेरी मच।